स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Respected Dr. Ajay Vaktaria ji, President YSFI India, and Vice Presidents Mr. Gaurav Rai ji, Mr. Hemant Joshi ji, and all our official members, brothers and sisters. My name is Shiva Mishra and I am live today with YSFI India, that is Yoga Sports Federation India. There are lots of topics to talk about various scenarios. Like we all know that yoga is a very vast field, and as per need of this yogic field, we have lots of things to discuss, like which kinds of things should be practiced, what actually yoga is, how we have to deal with the particular problems, what is the need of the absolute field. There are lots of issues are there. When I met with Dr. Vaktaria, he told me about the actual phenomena of yoga sports. See, I belongs to a very generic field that is called yoga as a spirituality, yoga as practice, and yoga as for yourself also. For the first time, when I met with him, and as a as a team member, I identified the need of yoga sports. I found on those days very typical things, like very important things, which are really important for not only me but for uh, the generation which will join us, not today but definitely one day. For that, what we are doing as a yoga persons. However, there are lots of issues to talk about, that how we can live with the phenomena, how we can join the scenarios, what are the actual what are the actual kind of things where we actually exist. When I think about that as a yoga person, I always identify the need of this whole word about yoga, like why people are getting yoga as their inheritances, why they don't involve themselves in proper manner, like how spirituality actually. Like when we talk about the yogic concepts, like when we talk about the like Hatha Yoga Pratipika, when we talk about Gheranda Samhita, when we talk about Patanjali Yoga Sutra, and all Shiva Samhita, Vasishtha Samhita, and many more yoga philosophies and yoga books, we identify that we are actually not following the things which was told by earlier of our eminent scholars and eminent speakers, and as well eminent sages as well. What is that? I always this will definitely shook your mind also when I told you some psychological aspects. This is my today's topic in front of you: yoga and some psychological aspects of yogic field. Let me discuss about that. How we can get involved in proper yoga, how we can get involved in actual phenomena, how we can identify the need of yoga, why we are unable to enter inside the spirituality. What are the factors because of that the people who are having a great yoga knowledge but they won't be able to survive inside the yogic spirituality? Why newcomers students, there are lots of students associated with YSFI, and not only YSFI but across the world there are lots of organizations are there, but they are only performing asana. Why they are unable to get inside the actual yoga? What is yoga? When we talk about yoga, we identify the definitions. Definitely we identify the functions and identify the need of yoga, and then identify the functions, and definitely we will learn once about the definition.
Like when we talk about definition, we have lots of definitions are there. Like, Gita ji told something about yoga. Definitely, Bharshi Patanjali, who was the philosopher of yogic sciences, he also let us know about some yogic concepts. And there are lots of definitions are there. People are absolutely getting the definition, not their their wordings, but their need. Actually, if you belongs to like positive manner or you belongs to negative manner, on that time you will identify that definitely it will be like siddha siddhayo samo bhutta samattam yoguchyate, this kind of thing, like positivity and negativity. And on that both condition, when you belong in midway, on that particular time you will be a perfect yogi. Karmanyavadhikaraste type of things is very important for our life. What we can do, is it important? Is it only, did you not think that it is only a philosophy? And philosophy, when we talk about philosophy, the two words came in our mind, the philos and sophia. What is philos and what is sophia? Philos is something, seeking of knowledge, and sophia for love towards the knowledge and wisdom. Alright, so when a person who belongs to any field and enters to the knowledge world, and he start loving the particular knowledge and interpreting the things according to their own thought, he or she will become philosopher. What the need of philosophy? Why in yoga? Why yoga is more than science and more than art? Why yoga is something like we are dealing with philosophy? Alright, we have to think about that. What actually yoga is. So, my dear friends, today I have 27 concepts. You may write down also, you may think about that also, and I'm sure that this will hamper your mindset also. Alright, so you have to identify the actual need. Alright, you have to think about the actual conditions of yoga market. You have to think about the yoga spirituality. You have to think about the yoga as the curriculum. Whatever our ancient sages think about the yoga, we have to think about that. And nowadays there are lots of issues are there. Start with sadhak evam badhak tattva. What is badhak tattva? Like when we talk about badhak tattva, there are six major elements we find out our studies. There are five, but however we identify six. What is that? This is like, like when we talk about badhak tattva: anidra, smita, klesh, dvesh, abhinivesh, and angamechatva. Let me forget anidra and asmita, forget and angamechatva, we leave it. But the klesh, dvesh, and abhinivesh, the three words will shook your mind. Absolutely, I'm sure about that. Why? Like when I talk about, like, just think, dvesh. Maximum yoga field, yoga spiritual masters, yoga teachers, trainers, therapists, they all are suffering with these problems. That is called dvesha. What is dvesh? When I talk about dvesh, the first thing came in mind that why he can do that particular thing, how he identified his need in more than rather than me. Like for example, when we sit in the classroom, we identified that the people who actually are friends, known to be or pretend to be our friends, if he or she get more marks rather than me, I will never be happy. If he or she will get less mark rather than me, I will be happy. But if he or she will get more marks rather than me, with the same culture of manner, same culture of education, with the same master, definitely I will feel a thought inside our mind. This is what, this is kind of dvesha. When you talk about like klesh, what is klesh? Your mind, when you are starting interpreting something, you are starting interpreting yoga, you start practicing yoga, on that time you identify yourself as in a dilemma condition, and such time you feel that, oh my god, I am in a big trouble. As a students, my dear friends, you have to understand about that klesh is something presented inside your own mind, and this will change your whole chemical process. So how we can get rid from the particular problem? We can get rid from all of these problems by their lots of manners. The yoga is the absolute thing for that. See, many people, like I was in class and I identified that someone came to me and asked that, sir, suppose I met with an accident, and
may I need to go to any yoga teacher, or I have to go to any doctor or hospital? What is the need of yoga? That you are saying that yoga is a science, and absolutely it's about all about medical sciences. It deals with diseases and such kind of things. What my mind was really admire and their questions, but I identified a very normal culture of answering. What was that? That was like, suppose when you are starting doing yoga, when you are doing yoga, when do lots of asana earlier rather than your life, you identify yourself. You never met with an accident because your mind will be sympathized, and you won't be able to meet with any such conditions which will hamper your life anymore. So yoga try to teach you the actual conditions, the actual connotations, and these kind of connotations will definitely help you. All right. So yoga, something which deals with your mind, which deals with your soul. And what is soul? When I talk about like anatomically, just let me know that we have anatomical structure of our mind, man, or not. All anatomists, all physiologists, all MDs and doctor will definitely answer you no. There are no any existence of मन. मतलब आपके शरीर में मन की संरचना नैसर्गिक तौर पे नहीं उपलब्ध है, आदि भौतिक तौर पे तो आप प्राप्त उसे नहीं कर सकते हैं। दैविक स्तर पे यदि आप सोचें कि आपका मन है जो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप मन को प्राप्त करते हैं। तो क्या मननात् त्रायत इति ही मंत्र जो शब्द कहा गया हमारे ऋषियों के माध्यम से, तो क्या वो झूठ है? नो। When we talk about mananat trayatiti mantra, then definitely we are talking about the superficial conscious. There are three kind of consciousness. My professor Dr. Kamakya sir always talk about the scenarios like conscious, super conscious, meta conscious, and lots of issues. Lots of stages are there in consciousness. चेतना, मानव की चेतना कई प्रकार की हो सकती है। कई बार वो मेटा कॉन्सियस है, कई बार सुपर कॉन्सियस है, कई बार कॉन्सियस ही है, कई बार वो कुछ नहीं है। तो क्या फिर मन की थियरी गलत है? क्योंकि भाई एनाटॉमिस्ट तो मानते नहीं है, फिजियोलॉजिस्ट तो मानते नहीं है। अब यदि एनाटॉमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें क्या करना है? भाई हमें तो सबूत चाहिए। आपने जो भी बातें कही उसका तो हमें सबूत चाहिए। आपने जो भी चीज़ें कही, सपोज कि मैंने कहा मेरे पास दो आंखें हैं, तो आपको सबूत चाहिए कि दिखाओ, और फिर मैं दिखाऊंगा ये देखो एक और एक, ये दो आंखें होंगी मेरे पास में, मेरे पास दो हाथ है, मैंने आराम से दिखा दिया कि मेरे पास दो हाथ है। लेकिन अगर बात मन की जाए, तो क्या आपके पास मन है? आप बोलेंगे हाँ ये है ना। नहीं, ये तो भाई कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, इसे तो आप क्रीनियल एरिया बोलते हैं। फिर ये क्या है? ये तो सेरिब्रम सेरिबेलम है। ये ऐसे ऐसी संरचना, ये क्या है? फ्रंटल है। तो फिर मन कहाँ है? इन अंदर ब्रेन में? ना ना, ब्रेन में तो भाई बस केमिकल लोचा है और कुछ नहीं है। मन कहाँ है? बड़ा प्रश्न है। जिस पे एक बहुत बड़ी विधा बना दी गई जिसका नाम है साइकोलॉजी, जिस पे एक बहुत विशाल विज्ञान खड़ा किया गया जिसका नाम है मनोविज्ञान, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपके शरीर में, उस विषय वस्तु पे दुनिया की सबसे क्लिष्ट और सबसे क्लिष्टतम विज्ञान की आभा आपके समक्ष पेश की जाती है। क्या? मनोविज्ञान। आज हम लोग अपने इस समस्त लेक्चर के माध्यम से, चाहे ये 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, हमें उन मुख्य 27 मूलभूत गुणों को जान लेना है जो आपके लिए वास्तव में बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि भाई किन माध्यमों से योग के मनोभौतिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे हम अपने आप को इन चीज़ों से उठा सकते हैं। क्या होती हैं ये चीज़ें? क्यों हम योगा के आसन तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर द्वेष क्यों आ जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, श्रेष्ठजनों, आप सभी के अंदर कभी ना कभी ये ऐसी स्थिति आती होगी जब आप ये समझते होंगे कि आगे आने वाली कंडीशन आपके अनुकूल नहीं है। सपोज आप चैम्पियनशिप में खेल रहे हैं और चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया, आप पहुंच चुके हैं द्वितीय राउंड में। आपके मैनेजर ने या आपके होस्ट ने आपको बताया कि आपके मार्क्स अभी अनाउंस किए जाएंगे और आप एक डायलेमा में हैं। जो बहुत छोटी कंडीशंस वाले बच्चे होते हैं, जो 0 to 6 वाले होते हैं, वो तो बड़े आराम से दौड़ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं पूरे वेन्यू का। लेकिन जो बड़ा होता है, जिनकी उम्र लगभग 18 से 20 या 25, 30, 40 के आसपास में, उसके मन में कहीं ना कहीं एक
एक भावना जन्म ले चुकी है। भाई वो योग के आसन कर रहा है और आसन के दौरान ही उसके अंदर भावना हो चुकी है कि मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे से बगल वाला तो भाई तगड़ा है, ये बहुत कठिन आसन कर सकता है। चैंपियनशिप की बात चल रही है, आपका मन स्थिर हो ही नहीं पा रहा। और यदि आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लेश या द्वेष जन्म लेगा ही लेगा, क्योंकि मन की गति को रोक पाना उस पर्टिकुलर समय में तो आपके खिलाफ है, क्योंकि आपका रक्त प्रवाह तीव्र हो चुका है। भाई आपके अंदर अलग अलग हार्मोन्स बह रहे हैं, कई बार तीव्रता आ रही है, कई बार घबराहट हो रही है, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे झेलें इन चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मेरे प्यारे बच्चों से जो मेरे स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्यों ना आज उनसे बात की जाए, क्योंकि बड़े विषयों पे तो बहुत सारे वक्ता आएंगे, लेकिन और वो बताएंगे भी आपको कि होता क्या है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जिस विषय को आज मैं छूने जा रहा हूँ मेरे प्यारे विशेषकर बच्चों, आपको ये समझना होगा कि जब भी आप किसी भी चैंपियनशिप में, जीवन के किसी भी, देखिए जीवन खुद में भी एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है, और जब आप किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें तो सिर्फ आप खेलें, आप अपना पूरा खेलें, जितना आप चाहें उतना लगाइए ना आसन, किसने रोका है। जीत हार या अपने इन्हीं भावनाओं को अपने मन में, अपने अंतरंग में कंट्रोल करके खेलें। ये सिर्फ योग चैंपियनशिप की बात नहीं है, ये आपके जीवन की भी बात है। पिछले लगभग 25 30 40 दिनों में मेरा विश्व के बहुत उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, प्रोफेसरों से मिलना जुलना रहा, बातचीत होती रही। इस दौरान मैंने एक बात बहुत करीब से महसूस की है, और मैं अपने शैक्षिक अनुभव के आधार पर भी आपको बता रहा हूँ। पिछले 8 विश्वविद्यालयों के एल्यूमनाई के तौर पे, चूँकि 8 विश्वविद्यालयों से मैंने अपनी शिक्षाएं ग्रहण की हैं, अलग अलग डिग्रियाँ, तो जब हम बात करते हैं ऐसे अनुभवों की, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है कि जो बहुत गुणवान, बहुत विद्वान व्यक्ति है, उसके अंदर 2 गुण तो होते ही हैं। या तो वो बहुत शील है, या तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत उतलापन है, या तो वो इतना डूब चुका है कि वो आपको बिल्कुल एक अलग अवस्था में रखेगा, आप उसको देख के समझ ही नहीं सकते कि वो सोच क्या रहा है। हालांकि दिक्कतें तो सबके साथ हैं, वो मानसिक लेवल पे उसके भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जिस भी पदवी पे पहुंचा है उस पदवी पे भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो उसके जस्ट नीचे वाला होता है, और ऊपर वाले के लिए वो खुद कॉम्पिटिटर है। तो इसको तो 2 चीज़ों से डील करनी है, एक ऊपर वाले से भी और एक नीचे वाले से भी। तो ऐसी कंडीशंस में उन्हें सिर्फ 2 चीज़ें याद आती हैं, उनकी वृद्धता उस पर्टिकुलर समय में। तो मुझे लगता है जो मैंने महसूस किया है, या तो उनको बहुत ऊपर ले जाती है, ऊपर इन द सेंस उनको इन सारी अनुभूतियों से बिल्कुल परे कर देती है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ पड़े, उनको ये बिल्कुल महसूस नहीं है। एक कथा याद आती है मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उनके साथ एक बार क्या हुआ कि जब वो अपने घर में बैठ के कुछ लेखनी कर रहे थे, वह हुआ यूं था कि जब वो गए हुए थे तो कुछ विद्वत सभा ने ऐसा कहा था भारतेंदु जी से कि भैया ऐसा है कि हिंदी के तो परम विद्वान आप ही हैं, तो क्यों ना एक हिंदी का शब्दकोश बनाया जाए। अब भाई हिंदी के शब्दकोश को बनाने की बात चल रही थी, तो अब ये काम ले कौन। तो ये काम बहुत क्लिष्ट था, क्योंकि मान लीजिए लाखों करोड़ों शब्द हिंदी के, एक एक शब्द का अर्थ लिखना, और वो भी पैरेलल शब्दों में, बड़ा कठिन कार्य था। अब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए, यदि आप लोग समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो करता हूँ, मैं क्या दिक्कत है। और फिर इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब ये आए, लिखना शुरू किया, सारे काम तो उस समय छोड़ ही चुके थे। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में उनका एक युग चलता है हिंदी विचारधारा में। तो उन्होंने इतना अपने आप को संलग्न कर लिया कि वो भूल गए कि वो किसी घर में रहते हैं और उस घर के वही मुखिया हैं। वो लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे शब्द। एक दिन उनकी वाइफ आई और आके बोला कि अरे भाई आप कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, भोजन तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अवाक हुए, उन्होंने देखा तो बोला रहा मैं तो यहाँ हूँ। उनके जिम्मे तो सिर्फ यही काम था, भोजन आ जाता था, खा लेते थे, सो जाते थे। तो कहने का मतलब है कि जब वो अपने आप को इतना संलग्नित कर लिए कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वास्तव में होना क्या है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जहाँ है वो ही शुरुआत है, आदि है, वो अंत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा इस साइकोलॉजिकल टॉक के माध्यम से
कि हम उस अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था में वास्तव में हम एग्जिस्ट करते हैं, जिस अवस्था के लिए हम बने हैं। जैसे हम बाल्यावस्था के लिए बने हैं तो हमें बाल्यावस्था के मूलभूत गुणों को प्राप्त करना है। यदि हम योगा चैंपियंस के तौर पे उभर रहे हैं तो हमें उन मूलभूत गुणों को प्राप्त करना है, और यदि हम इसके अन्यत्र कुछ और बन के उभर रहे हैं तो हमें अपने उन मूलभूत गुणों को प्राप्त करना है जो मूलभूत गुण सामान्य अवस्था में किसी अन्य के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि भाई आप तो आप हैं, आप भारतेंदु हैं, आप योगी हैं, आप योग के अध्यापक हैं या योग के प्रैक्टिसनर। तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो मुख्य 27 बातें याद रखनी है वो आज मैं बात करूंगा। पहला जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल है उसके 27 जो मुख्य गुण हैं, जो मुख्य एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला है वो है जेनरोसिटी। लाइक जेनरोसिटी क्या होती है? जेनरियस होना, किसी भी चीज़ के विषय में ज्ञातव्यता आप जब बढ़ाते जाते हैं, जब आप आपके अंदर उस मूल तत्वों को जानने की इच्छा समाहित होती है, जब आप ये प्राप्त कर पाते हैं कि आपको बहुत कुछ जानना है, वो समय जेनरसिटी का कहलाता है। आप जेनरियस हो चुके हो। इसमें एक किताब है ब्राउन, एमडी ब्राउन की। उन्होंने जेनरसिटी के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। साइकोलॉजी में ये जेनरोसिटी की बातें बहुत हैं, और योग के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है ये हमें समझना होगा। भाई जब आप जागरूक बनेंगे, जैसे सपोज कीजिए वो व्यक्ति था, वो जागरूक था, जिसने आपके शरीर को देखा तो सोचा कि कहीं ना कहीं इस शरीर के अंदर कुछ तो और है। कहीं ना कहीं उसने ये ज़रूर सोचा कि भैया शरीर के अंदर क्या है, तो उन्होंने शरीर को काटा, चीरा और फाड़ा। फिर उन्होंने प्राप्त किया कि अरे शरीर के अंदर तो मांस है। मांस को भी उनको लगा नहीं नहीं कुछ तो और होगा, उन्होंने काटा, स्केलेटन प्राप्त किया। फिर उनको लगा और देखते हैं, उनको टिश्यूज़ मिले, क्या कहते हैं, ऊतक माने टिश्यूज़, और उसके बाद कोशिकाएं मिली उनको। कोशिकाओं को भी किसी ने तो तोड़ा। ये 1665 की गाथा है जब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन जैसे आर्ष विद्वान लोग कोशिकाओं को भी तोड़े और उन्होंने प्राप्त किया। हालांकि शरीर के विषय में किसी ने जेनरसिटी प्रस्तुत की थी, जिनका नाम महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत था, जो हमारे आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे एक जमाने। उनके अंदर जेनरसिटी आई, वो जागरूक हुए, उन्होंने महसूस किया कि हमें क्यों ना इसके विषय में जानना चाहिए। और वही जागरूकता आज हमारे सामने इस पूरे विज्ञान के अनुभवों को लाके रख रखी है। सो हम जेनरसिटी को प्राप्त करें। योगा में हमें ये प्राप्त करना बहुत है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, और शिष्य नहीं बन पाएंगे तो जीवन में गुरु बनने की तो कल्पना छोड़ दीजिए आप। गुरु का मतलब वो टीचर काइंड ऑफ गुरु की बात नहीं कर रहा मैं। गुरु और लघु ये दो शब्द होते हैं। गुरु का मतलब बड़ा। आप कब बड़े बनेंगे? जब आपके पास विद्वता की अत्यंत पराकाष्ठा प्राप्त हो, और ये पराकाष्ठा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप जिज्ञासु बनेंगे। आपकी जिज्ञासा ही आपको आगे ले जाएगी। ये आसन क्यों, ये प्राणायाम क्यों, कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है, क्रिया क्यों है? ऐसी जिज्ञासाएं आपको एक एक बहुत बड़े डायलेमा से निकालने की कोशिश करेंगी, और आपके अंतरंग में एक ऐसे फिलोसोफर को भर देंगी जो वास्तव में नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करने के लिए बना। जब आप जिज्ञासु बन जाते हैं प्यारे मित्रों, तो बात आती है गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग देखिए, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ऊपर जाती हैं तो नीचे नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर जाती हैं तो नीचे आती हैं। क्या है, क्या कौन सी चीज़ है? हम भाई सपोज कीजिए मैंने अपना ये फ़ोन उठाया और मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, और मैंने कहा कि ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं ये तो झूठ बात है ये ऊपर जाते ही तुरंत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी है, यहाँ पे ग्रेविटी खींच लेगी। भाई यही तो न्यूटन ने देखा, उन्होंने वही तो सेव देखा, और उन्होंने प्राप्त किया कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ऊपर जाती हैं और नीचे भी आती हैं। साहब कैसे, क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हम बात करते हैं गोल सेटिंग की, तो हमें ये समझ लेना होगा कि हमारे पास यदि 11.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार हो, बिल्कुल साइंटिफिक डेटा है, 11.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यदि मैं ये अपना फ़ोन उठा के ऊपर फेंक दूं तो ये नीचे नहीं आ सकता है, चाहे कितनी तगड़ी ग्रेविटी हो।
पृथ्वी की बात है। हुआ ना, ये कैसे हो गया? ये मतलब जो हमें लग रहा था असंभव है वो भी संभव है। भाई रॉकेट इन्हीं रफ्तार से ऊपर जाते हैं, ये उनकी फिक्स्ड रफ्तार है। तो इसका मतलब है कि हम गोल कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब योगा में गोल सेटिंग का क्या उपयोग? योगा में गोल सेटिंग का उपयोग मात्र इतना है कि जब आप अपने आप को किसी एक नैसर्गिक स्तर में प्राप्त करने की परविधा को प्रतिपूरित करने की कवायद में लग जाते हैं, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने आप को उस गोल सेटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आपकी मतलब एक बिल्कुल प्राय अवस्था हो जाएगी, प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में आप गोल सेटिंग्स के अगले लेवल पे पहुंचेंगे, और वो क्या होगा, जब आप अपने गोल को सेट कर लेंगे तो फिर आप प्राप्त करेंगे। सपोज कीजिए आपने महसूस किया कि आपको हनुमान आसन पूरा लगाना है। अब आपने गोल सेट कर लिया तो आप उस दिशा में प्रयासरत हो जाएंगे। योग में सिर्फ आसनों तक की गोल सेटिंग ना हो। आजकल चैंपियनशिप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी हमने ऐसा महसूस किया है वैश्विक परिविधा में कि मैक्सिमम लोग आसनों को प्राप्त करने तक की अवस्था में रह जाते हैं, या फिर कल्याण मार्ग पे रह जाते हैं। भाई अपने लिए क्या? अपने लिए जब आप एक गोल सेट कर लेंगे स्पिरिचुअल पैथ पे, मैं सिर्फ आपके नैसर्गिक जीवन के गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा, अपितु मैं यौगिक जीवन की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी योग से संबंधित व्यक्तित्व हैं। और जब आप योग से संबंधित व्यक्तित्व हैं और ऐसे कंडीशंस में यदि आप अपनी चीज़ों को एक लेवल तक नहीं ले जाएंगे, एक सार्वभौम सत्य तक नहीं प्राप्त करा पाएंगे, तो आपका तो रिजल्ट जीरो रहा ना। भाई कार्य की परिभाषा होती है कि बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो ही वर्क होता है। चाहे अगर आप किसी एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं और वापस दूसरे बिंदु से चल के पहले बिंदु पे वापस आ जाते हैं, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। ये भौतिक विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा। भौतिक विज्ञान को भी ये चाहिए कि यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य डिस्प्लेस्ड हो, उसमें बल लगा हो। बल लगेगा तो ही वो डिस्प्लेस होगी, और वापस यदि उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई वो नहीं हो रहा, आप एक ही जगह पे किसी चीज़ पे बेतहाशा बल लगाए हुए हैं, तो कार्य शून्य है। गोल सेटिंग भी कुछ ऐसा ही है। हमें ये समझना होगा कि योग के गोल के तौर पे हमने क्या प्राप्त किया। क्या कुछ हमने ऐसा देखा है, क्या कुछ हमने ऐसा पाया है जहाँ पे हम अपने आप को ये कह सकें कि वास्तव में हम एक गोल सेट कर चुके हैं? और क्या हमने एक स्पिरिचुअल पाथ को, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने तय कर लिया कि मैं अष्टांगा योगा के प्रथम पाद यानी यम को ही प्राप्त करके दिखाऊंगा, प्राप्त किया क्या मैंने? और यदि नहीं प्राप्त किया तो मैं शून्य हूँ। मैं शिखर पे, मैंने तीसरे लेवल आसन पे प्राप्त अपने आप को नहीं पाऊंगा जब तक मैं अपने यम को ही ना साध लूं। साधना, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने साधना आराधना के विषय में बहुत बातें की, बहुत लिखा उन्होंने, और जिया उन्होंने, अपने जीवन में जिया। आप उठाइए ना उनके जीवन को और देखिए, आप प्राप्त करेंगे कि वास्तव में जीवन की एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जहाँ पे उनके पास अथाह असीमित ज्ञान आ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 21 लाख गायत्री महामंत्रों के 21 महापुरुष शरण किए। ये संभव आसान नहीं है। आप एक दिन में मंत्र जप के देखिए, 4 घंटे में या 5 मिनट में आपसे एक मंत्र ही जपा जाएगा या एक माला जपी जाएगी। ऐसे 21 लाख मालाएं, आसान नहीं था। कैसे हुआ? गोल सेटिंग के माध्यम से। आप भी बनाइए ना एक ऐसा अपना गुरु जो आपको ये दर्शित करे, आपको ये समझाने की कोशिश करे कि वास्तव में गोल सेटिंग कैसे प्राप्त करना। भाई आपके योग के अध्यापक से पूछिए कि सर गोल सेटिंग क्या होता है, और यदि आप खुद योग के अध्यापक हैं तो आप खुद से पूछिए ना, क्योंकि गुरु तो आपके अंदर ही है। कहीं ना कहीं छात्र तत्व आपके अंदर हो या ना हो, गुरुत्व तो आ चुकी है, क्योंकि आप एक बार अध्यापक बन चुके हैं। और सर ये एक मेरा अपना अनुभव है, जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना योग के, तो आपके पास ज्ञान की पराकाष्ठा, खुद योग आपको सिखाने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप योग आपको चुना है, आपने योग को नहीं चुना। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं इस पूरे विश्व में, लेकिन यदि आप योग के प्रकांड विद्वान बने हैं तो योग ने आपको चुना है। ये इस क्षेत्र की बड़ी खास बात है। उस समय, उन दिनों की बात है, हजारों मछलियां तैर रही थी जब शिव पार्वती संवाद हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक मछली के भाग्य में था। मत्स्येंद्र नाथ के नाम से वो जाने गए, और नाथ संप्रदाय का पूरा प्रकरण उन्होंने फिर डेवलप किया, योग को आपके लिए सुलभ बनाया। मत्स्येंद्र नाथ, वो सिर्फ एक मछली थी। वहाँ पे और भी मछलियाँ थी, चाहिए होती तो वो रुकी होती और आपको वहाँ पे आपके स्तर को, आपके चीज़ों को प्राप्त कराई होती।
लेकिन आपको ये समझना होगा कि गोल सेटिंग कुछ भी बड़ा नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको वो चीज़ें प्राप्त करनी है। होमर की किताब है गोल सेटिंग के विषय में, आपको उस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन केनन की एक किताब है गोल सेटिंग के विषय में, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपकी जीत किताब है खेड़ा साहब की, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपके जीवन में यौगिक लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ आती है 27 मोस्ट फैक्सिनेटिंग फैक्ट्स में, वो है आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। देखिए आजकल योग के लोग ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि यार हमें, सपोज कीजिए कि आप हेयर फॉल के लिए किसी को योग कराने जा रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आपका हेयर कैसे बचेगा। गलती से यदि किसी क्लाइंट ने आपको फ़ोन कर दिया कि सर हेयर फॉल के लिए योगा बताइए, तो आप बोलेंगे यस मैं कराऊंगा जी आपको, और आप पहुँचे, अब पता लगे आप ही सपाचट हैं, है ना। तो कैसे होगा ये। आप किसी के पास पहुंच गए किसी को मोटा से पतला करने के लिए, और पता लगा कि आपका तो खुद की तोंद जो है उसमें 3-3 टायर आपने समा रखा है। कैसे होगा फिर। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो समग्र स्वास्थ्य चिकित्सा एक बहुत बड़ा टर्म आता है हमारे साथ। समग्र स्वास्थ्य चिकित्सा क्या हो सकती है और योग में क्यों हो सकती है। भाई समग्र का मतलब हो गया हॉलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। जब हम हॉलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो हमें ये जान लेना होगा कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। भाई हैनी मैन ने जब मटेरिया मेडिका लिखा तो उन्होंने ये लिखा अपने उस पुस्तक में कि आपको ये जान लेना होगा कि कारण लक्षण और मोडालिटीज़ के अलावा तीसरा कोई अन्य चीज़ नहीं है स्वास्थ्य में। मतलब रोग या किसी भी स्वास्थ्य में अगर आपको डील करना है तो आपको कारण, लक्षण और मोडालिटीज़ के फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। इन तीनों को आप फॉलो करेंगे, आप खुद भी स्वस्थ हो जाएंगे। और जब आप एक बार इस साइकोलॉजिकल फैक्टर एक बार जान लीजिए, जैसा आपका स्वास्थ्य है ना, मन आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आप देखेंगे जो बहुत पतले लोग होते हैं, चिड़चिड़ाहट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कॉमनली महिलाओं में ये चिड़चिड़ाहट बहुत देखी जाती है जब वो बहुत पतली होती हैं, और हेल्दी होते हैं तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो उनको जो करना है करें। ऐसा ही पुरुषों के साथ होता है। जो पुरुष अपने मस्तिष्क में ऐसी चीज़ों को लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है चलिए मैं स्वस्थ हूँ, उनके सोचने की परिविधा बदल जाती है। ऐसे हज़ारों केसेस हुए हैं। मैं जर्मनी वो कहानी है 1980s के आसपास की, बर्लिन ब्लॉकेट चल रहा था और वहाँ रशिया जो था वो इन्वेड कर चुका था, और फ्रांस ने भी इन्वेजन्स कर रखे थे, ब्रिटेन भी इन्वेजन्स कर रखा था, और बर्लिन ब्लॉकेट हो चुका था। वहाँ पे जो फ्रांस के जो महोदय थे, उन्होंने एक बात कही कि आप अपने सैनिकों में, जितने भी अपने सैनिक हैं, उन सारे सैनिकों में सिर्फ युवाओं को जो 30 से लेके 35 के बीच में स्वस्थ हो, जिसका वजन इससे ज़्यादा ना हो, सिर्फ उन्हें ले आओ, उनके साथ बैठ के मेरे को डिस्कस करना। क्योंकि कॉमनली उन दिनों कर्नल जनरल ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन वो सबको मना कर दिया। उसके डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, आप मुझे सिर्फ स्वस्थ लोगों को लाइए, क्योंकि स्वस्थ मन से ही स्वस्थ चीज़ें निकलती हैं। और बर्लिन, मतलब जर्मनी जो था उन दिनों, बर्लिन का ब्लॉकेट फिर हटा। रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे महाशक्तियों को भी बहुत स्थिरतापूर्वक वहाँ के लोगों ने मात दे दी। और ये मात जो थी वो आज भी बर्लिन ब्लॉकेट के नाम से फेमस है। भाई एक दीवार बना दी थी पूरे बर्लिन शहर में, वो चीज़ें टूटी भी और लोग जिए भी। और ये पूरा स्ट्रैटेजिक था, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। इतिहास के छात्रों को ये बात पता होगी। संभव नहीं था। कैसे संभव हुआ? इसलिए नहीं संभव हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो किसी सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक लोगों को बुलाया, अपितु इसलिए ज़रूर संभव हुआ कि उन स्वास्थ्यवर्धक लोगों के, जो स्वास्थ्य लोग थे, उनके मस्तिष्क में बड़ी गजब परिविधा थी। मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से योग के, विशेषकर योग के अध्यापकों, योग के छात्रों से आज बात कर रहा हूँ। आपको ये ज़रूर जान लेना होगा कि स्वास्थ्य आपकी बहुत बड़ी कुंजी है, और यदि एक बार आप खुद को स्वस्थ नहीं कर पाए तो फिर आप दूसरों को क्या ही सिखाएंगे। तीसरी चीज़ थी हेल्थ। चौथी चीज़ होती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस की बात होती है कि जब आपका मस्तिष्क, मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य आपका ठीक होगा तो मन ऑटोमेटिक ठीक होगा, और ये 27 मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ड्स में है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में है। ये माइंडफुलनेस की बात है। माइंडफुलनेस क्या होता है मित्रों?
माइंडफुलनेस का तात्पर्य सीधे सीधे ये हो गया कि आपका मस्तिष्क इस परिविधा, इस व्यवस्था में काम करे कि जो भी चीज़ें आप सोचें, जो भी चीज़ें प्राप्त करने की कवायद करें, कोशिश करें, उसे प्राप्त कर पाना आपके लिए असंभव सा ना हो। उसे प्राप्त कर पाना आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हाँ किस लेवल पे हमें उन चीज़ों को प्राप्त करना है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा मस्तिष्क किन लेवल पे वास्तव में उस अवस्था में पहुंच गया या नहीं पहुंचा। हमें वो अवस्था प्राप्त करने के लिए योग को एक माध्यम बनाना होगा। वास्तव में मित्रों, योग एक माध्यम तभी बन सकता है आप सभी के लिए जब आप उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करें, जब आप उसके उस माध्यम को प्राप्त करने की कोशिश करें, जब आप उसकी स्थिरता, उसकी ध्यातव्यता को प्राप्त कर पाए। कैसे होगा ये? भाई आसन आप करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे इससे क्या साधना है। साधना है ना, साधने का मतलब हुआ खुद को किसी एक टारगेट को सेट कर लिया और उसको सेट कर लिया, उसको जीत गए आप। तो आप कैसे जीतेंगे? माइंडफुलनेस को भी अपना मुख्य अवयव बनाएं योग के माध्यम से। प्रयास कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करे जहाँ पे आप माइंडफुलनेस की तमाम गतिविधियों को बहुत स्थिरतापूर्वक प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, हमने 4 विषयों के विषय में बात की अभी तक, लाइक जेनरसिटी, जिज्ञासा, गोल सेटिंग, आपके क्या गोल्स होने चाहिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, तीसरा, चौथा माइंडफुलनेस। पांचवे की बात होती है तो पांचवे की बात आ जाएगी फिर डिप्रेशन, जिसको हम सामान्य अवस्था में तनाव यानी डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है? हाँ। और योग में डिप्रेशन कैसी बात है? ये थोड़ी सी ज़रूर आपको आश्चर्य करने वाली चीज़ें लगेंगी, लेकिन आपको समझना होगा इनके तत्वों को। डिप्रेशन का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एक पता है एक ऐसी अवस्था में चले गए जहां आप किसी को देखते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको नींद नहीं आती, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको इंसोम्निया हो रहा है, आप अवसाद में हैं, आपके मस्तिष्क की अवस्था में आप इतने योग्य नहीं हैं कि आप किसी चीज़ को प्राप्त कर सकें। कैसे? ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन पता, एक एक सामान्य अवस्था में यदि डिप्रेशन को यदि बहुत साम्य अवस्था में कहा जाए, इक्विलिब्रियम मोड में कहा जाए, तो डिप्रेशन वो भी हो सकता है जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की कवायद में आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि आपका मस्तिष्क ही इतना ताकतवर नहीं है, और फिर आप आते हैं कि ओह शिट, मेरे से नहीं हुआ। ये जो शिट वर्ड आता है ना आपके मस्तिष्क में, हालांकि इसका अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन जब ये मस्तिष्क में वर्ड आता है ना, तो ये शुरुआत है। जब आप किसी चैंपियनशिप में हारते हैं ना, जब आप किसी चीज़ चैंपियनशिप में कुछ हार के सीखते हैं, उस दौरान जो आपके मन का भाव होता है, जब आपके आंसू निकल रहे होते हैं, या जीवन में जब आप किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ पे आप कुछ कुछ भी उस चीज़ों के उन उन पराभौतिक तत्वों के विषय में जो आपके थे ही नहीं, उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसी अवस्था में आपको एक खेद होता है, एक कष्ट होता है। भाई योग के ना ही छात्रों को और ना ही अध्यापकों को, मैं ऐसा नहीं कहता कि हम बिल्कुल सख्त होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर कहता हूँ कि हमें किसी विषय वस्तु को लेकर खेद का भाव नहीं प्राप्त करना चाहिए। और नहीं प्राप्त करना चाहिए, ये कैसे संभव होगा? अगेन योग से। इसके लिए ही आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा बनी है। कीजिए ना, इन चारों तत्वों का प्रयोग कीजिए, आप अपने जीवन में कीजिए, किसने रोका आप? भाई आप यदि आसन कर रहे हैं तो आपको प्रत्याहार भी तो करना ही होगा, और प्रत्याहार कर रहे हैं तो धारणा तो प्राप्त करनी ही है, क्योंकि धारणा के बिना तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते। और जब आप सोचना शुरू करते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना शुरू करते हैं, तो आपका ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, ये बहुत स्थिरतापूर्वक चला जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक शब्द होता है दृष्टिकोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड। जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो बे, तो पता है वो क्या सोचता है? उसको लगता है कि मैं घमंड दिखा रहा हूँ। देखिए शब्दों में कितना अंतर है। मैं मान लीजिए अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है। भाई साहब, एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? दृष्टिकोण हुआ ना। एटीट्यूड का मतलब तो ये हुआ हिंदी शब्द समानार्थक शब्द में। क्या आपका दृष्टिकोण? दृष्टिकोण का मतलब सपोज कीजिए कि मैं 6 को सीधे 6 की तरफ से देख रहा हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण है, और आप 6 को 9 की तरफ से देख रहे हैं, ये आपका दृष्टिकोण है। मेरा और आपका दृष्टिकोण अलग अलग ज़रूर है, क्योंकि मैं 90 अंश से देख रहा हूँ और आप 180 अंश से देख रहे हैं, तो दृष्टि का जो कोण हुआ वही दृष्टिकोण हुआ, वही एटीट्यूड हुआ। जो विजेता है वो चीज़ों को दूसरे नज़र से देखता ही नहीं, चीज़ों को दूसरे तरीके से ही करता है।
उसका पूरा का पूरा दृष्टिकोण एक सर्कल को प्राप्त करता है। मतलब वो सेम वस्तु, विषय वस्तु को हर एक एंगल से एक बार देख लेता है। और यदि आपके अंदर हर एक विषय वस्तु को 0 एंगल से लेके 360 एंगल तक देख पाने की क्षमता है, तो आप वास्तव में किसी भी डिप्रेशन से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। और ये अवस्था आपको मोस्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ऊंची उठाती है। फिर डिप्रेशन के बाद यदि अगला शब्द आता है तो उसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है भाई? सेल्फ कंट्रोल का तात्पर्य होता है कि जब आप किसी चीज़ को, सपोज कीजिए आपके मन ने, आपके मस्तिष्क ने ऐसी चीज़ों को उजागर किया कि हमें ये करना है, हमें अभी आम का जूस पीना है, और आपको उस आम के जूस की महत्वाकांक्षा या लालसा या तलब कह लीजिए उर्दू में प्राप्त होती है, और आप बहुत तीव्रता के साथ जाते हैं, जैसे सिगरेट पीने वालों के साथ होता है सामान्यतः। जो सिगरेट पीता है वो ऐसा महसूस करता है, या हमने जो लोगों से सुना है, जो प्राप्त किया है, कि सिगरेट पीने वालों को आप रोक नहीं सकते। जैसे दारूबाज होते हैं, जो दारू पीते हैं, बेवड़े, वो कसम तो खाएंगे आज कि साहब आज कसम है मैं पीऊँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, एक समय आएगा जब वो उस पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और वो प्राप्त करने की कोशिश में लग जाएंगे, और फिर कसम खाई हुई कसम में ऑप्शंस ढूंढेंगे कि मैंने तो बस सोमवार के लिए कसम खाई थी, या चलो हे भगवान 1 किलो लड्डू मेरी तरफ से, ये कसम थोड़ा 1 दिन के लिए माफ़ कर दीजिए, कल से फिर फॉलो कर लेंगे। सेल्फ कंट्रोल। योगा आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़बरदस्त टीचिंग देता है। क्या आप सेल्फ कंट्रोल को प्राप्त कर पाए हैं या नहीं? क्या आप उस अवस्था को प्राप्त कर पाए जहाँ पे आपने किसी चीज़ को सोचा और सोच के उसको वहीं पे रोक दिया? आपके अंदर थॉट्स आने की कोशिश में है, लेकिन उनको द्वारपालों ने आपके मस्तिष्क के सामने ही आके रोक दिया, और आप ऐसी किसी भी अवस्था से बहुत आराम से उस मतलब आगे बढ़ चुके हैं। समझ पा रहे हैं आप? सेल्फ कंट्रोल देता है योग आपको। ये योग की ही बात हो रही है, योग के उन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है आज, जो आपको एक बहुत विशद अवस्था में पहुंचा देंगे। और ये अवस्थाएं सामान्य नहीं है। मैं आज जो आपको बात बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि बहुत बड़े, अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो गूढ़ गूढ़ तत्वों को प्राप्त करने के बाद इन शब्दों को प्राप्त कर पाएंगे। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज बेस्ट योगा। ये कहावत सुनी होगी आपने। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, जो हमारा अगला 6वां-7वां टॉपिक है, उसमें हम ये महसूस करते हैं कि भैया यदि जो भी इदम न मम त्वमेव अस्ति, जो भी मेरा, ये इदम न मम, ये मेरा है ही नहीं, ये यत्र तत्र सर्वत्र आपका है। ग्रेटिट्यूड की भावना, जब आप किसी व्यक्ति के समक्ष झुक जाते हैं, उस समय की भावना, जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को निस्वार्थ भाव से प्रतिपूरित कर देते हैं, उस समय की भावना, जब आप किसी व्यक्ति के किसी संदर्भ को इस तरीके से प्राप्त करते हैं कि जैसे मानो वो व्यक्ति नहीं, वो समस्त संसार है, और वो समस्त संसार नहीं, वो स्वयं देव है। ऐसी कंडीशन में आप एक बात याद रखिए, व्यक्ति योग्य हो या ना हो, लेकिन आप यदि अपने आप को उस व्यक्ति के सामने पूरी तरीके से अपने आप को मॉड्यूलेट कर चुके हैं उसके एंगल में, तो आप विश्वास रखें, आपको स्वयं ईश्वर अपनी कृपा निधि से प्रतिपूरित करते हैं। कैसे? उदाहरण चाहिए आपको, मैं देता हूँ। द्रोणाचार्य का शिष्य था एकलव्य, कभी द्रोणाचार्य से मिला ही नहीं। भाई भील का बच्चा था, अब भीलों के यहाँ ऋषि मुनि पढ़ाते ही नहीं थे। उन दिनों का कार्यक्रम था कि राजाओं, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, राजाओं के, क्षत्रियों के बच्चों को पढ़ाया जाता था, छोटी जाति के लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य ने हमेशा अपने गुरु की मूर्ति के सामने अनवरत अभ्यास के माध्यम से उस पराविधा को प्राप्त करने की कोशिश की जो वास्तव में अर्जुन को दी जा रही थी। उसके गुरु तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे उन दिनों उसके सामने, वो तो सिर्फ एक मूर्ति थी। आपके गुरु, आपके टीचर, आपके जो भी, जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आपके सामने तो प्रेजेंट है। यदि वो आपके सामने प्रेजेंट है तो जरूर उसके पास है कुछ तो कुछ जो वो आपको दे सकेगा, लेकिन मूर्ति तो नहीं है।
और मूर्ति ना होते हुए भी यदि वो आपको कुछ दे पा रहा है तो वो द्रोण से तो श्रेष्ठ हो जाएगा। और गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांगा और अपने गुरु परंपरा को फुलफिल करते हुए एकलव्य ने प्रोवाइड भी किया। आज के दिनों में ऐसा हो पाएगा क्या? सपोज कीजिए किसी ने किसी टीचर की मूर्ति बना ली, सपोज अमिताभ बच्चन की फोटो किसी ने लगा ली और एक्टिंग अमिताभ बच्चन जैसे सीख गया और अमिताभ बच्चन ने बोला कि तुम मेरे को अपनी जीभ दे दो जिससे उसको सारे डायलॉग्स बोलने। देगा क्या? अरे बोलेगा भैया तुम अपने घर रहो, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन रहा, है ना। आपको ये समझना होगा कि ग्रैटिट्यूड बहुत महत्वपूर्ण। एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड इज द बेस्ट योगा। ये पंच लाइन है, आप लिख लीजिएगा और अपने जीवन में हमेशा इसका अभ्यास कीजिएगा। जब हम ग्रेटिट्यूड की बात समाप्त करते हैं तो फिर आती है अगली चीज़ें, मोस्ट फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, वो है नेचर एंड एनवायरनमेंट। नेचर एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? ये आपका वातावरण, ग्रीनरी वाला वातावरण तो है ही है, लेकिन इसके अन्यत्र आप किस वातावरण में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपके यहाँ क्लेश है, आपके यहाँ कष्ट है, आपके यहाँ कलमश है, आपके यहाँ कषाय है, आपके यहाँ द्वेष है, आपके यहाँ द्वंद्व है, आपके यहाँ निर्विघ्नता है, आपके यहाँ आदर नहीं है, आपके यहाँ संस्कार नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ उत्तेजनशीलता है और अन्यत्र कुछ भी नहीं है। ऐसी परिविधा में आपका पूरा पूरा वातावरण मतलब आपके आपके आसपास का आवरण जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए, पर्यावरण जो होता है ना, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घिरे हुए, एनवायरनमेंट। तो आपका जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो आपके फैमिली का, जो आपके फ्रेंड्स का, जो आपके परिवारजनों, मित्रजनों, स्नेहीजनों का है, वो यदि आपके योग्य नहीं है, आप योग में हैं और यदि वो आपके योग्य नहीं है, तो आप योग के कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, आप उस पर कभी जीत नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको ये समझना होगा कि किन माध्यमों से आप इन विषय वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे, किन माध्यमों से आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई योग के आसन को भी करना हो तो आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए। वैसे ही जब योग की साधना की बात आती है तो आपको नेचर एंड एनवायरनमेंट पे बहुत काम करना होगा। नेचर व्यक्ति का भी होता है, समाज का भी होता है और आपके आसपास के वातावरण का भी होता है। सपोज मेरा नेचर बड़ा क्लिष्ट है, मैं बहुत कठिन हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सौम्य हैं, कोई बहुत रिजिड है, कोई बहुत इरिटेटिव है। ऐसे अलग अलग आपके पास में नेचर्स के लोग होंगे, लेकिन इन सारे नेचर में एक बात बड़ी कॉमन है कि उनका भी नेचर एन से शुरू होकर ई पे ही समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा नेचर भी एन से शुरू होकर ई पे ही समाप्त हो रहा है। मतलब मैं भी वही हूँ, मैं भी पुरुष हूँ और वो भी पुरुष हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, वो भी व्यक्ति है, मैं भी मानव हूँ, वो भी मानव है, मेरे पास भी दो आँख, उनके पास भी दो आँख, मेरे पास भी हृदय, मैं उनके पास भी हृदय। तो इन सारी अवस्थाओं में हमने एक चीज़ प्राप्त की। क्या हमने जो चीज़ प्राप्त की मित्रों, वो ये कि नेचर की अवस्था सामान्य है। आपके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण नेचर है और मेरे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण नेचर वाले व्यक्ति मेरे आसपास हैं। हमें योग के माध्यम से इन नेचर पे काम करना होगा, हमें योग के माध्यम से एनवायरनमेंट पे काम करना होगा, हमें योग के माध्यम से ये समझना होगा कि वास्तव में हमारी महत्वाकांक्षा कहाँ वैरी करती है। हमें ये समझना होगा कि योग की परिविधा सिर्फ इतनी नहीं कि आसन किया, प्राणायाम किया या अष्टांगा किया, विन्यासा किया, हठा किया और उसके बाद समाप्त नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें प्राप्त करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो अगला टॉपिक आता है वो है फ्लो। फ्लो का तात्पर्य क्या है? फ्लो और क्रिएटिविटी, ये दो टॉपिक है। फ्लो का तात्पर्य क्या होता है? ये फ्लो नहीं कि आप कैसा बह रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं और आप कैसा कर रहे हैं, ये नहीं। आप आसन कैसा कर रहे हैं, ये भी नहीं। फ्लो का तात्पर्य हुआ कि जब जीवन में कोई भी ऐसी अनुभूति आए जो आपके अनुरूप नहीं है, कोई भी ऐसी अवस्था है जो आपके पूरे आपके पर्यावरण के लिए, आपके आवरण के लिए, आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, आपके मानसिक या आदिदैविक या आदि भौतिक अवस्थाओं के उत्प्रेरणशील के तौर पे नहीं है, ऐसी अवस्थाओं से आपको उबरना है। क्योंकि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है।
जब आप अपने इन सारे कष्टों से, जब आप इन सारे क्लेशों से दूर होते हैं, जब आप बह निकलते हैं, तो बहता हुआ पानी कभी सड़ नहीं सकता, चाहे वो यमुना हो या गंगा हो, जब तक उसमें कोई अन्य आके कुछ चीज़ें ना डाले। आप बहिए ना, बहिए। आप यम पे हैं तो नियम पे बहिए ना, नियम पे हैं तो आसन पे चलिए ना, आसन पे हैं तो प्राणायाम प्राप्त कीजिए ना। क्यों नहीं प्राप्त करते हैं आप? और यदि आप प्राप्त करते हैं मित्रों, तो आप यकीन माने, आपकी परविधा एक ऐसे कंडीशन में आएगी जहाँ पे आप एक क्रिएटिव पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाएंगे। भाई पानी जब बहता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने पहाड़ है या कौन, उसे चीरना है या तो वो बहुत सख्त है तो वो कहीं ना कहीं से दाएं बाएं ऊपर नीचे करके रास्ता बनाता ही बनाता है। भाई जब ये गंगा निकली गंगोत्री से तो उसके सामने बड़े उत्कृष्ट ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, नंदा देवी चोटियाँ, और जितनी भी चोटियाँ अल्मोड़ा की श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ पे कुमाऊँ गढ़वाल की श्रृंखलाएँ हैं, और उन श्रृंखलाओं को जो भी पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, शिवालिक श्रृंखलाएँ हैं, उन श्रृंखलाओं को बड़े आराम से चीरती हुई निकली गंगा और निकाल लिया रास्ता। भाई क्योंकि कोई जो पहाड़ है ना, वो उसका मूल भी तो होगा कहीं, और वो मूल आपको प्राप्त करना है अपने कष्टों के माध्यम, अपने कार्यकलापों के माध्यम से आपको प्राप्त करना है कि वास्तव में किस अवस्था से होके आप अपने रास्ते को प्राप्त करेंगे। और ये क्रिएटिविटी कहलाता है। क्रिएटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है योगा में। आज मैं आपके साथ योग के बहुत बड़े मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जो मैंने वास्तव में चीज़ों को सीखी है। ये वो मनोवैज्ञानिक आधार हैं जो आपके अलग लेवल पे आपको हमेशा साथ देंगे। यदि आप मेरे इन किसी भी तीन मनोवैज्ञानिक भावों को भी प्राप्त कर लेंगे, तो यकीन रखें आप दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्तियों में से जाएंगे। सफलतम किसी आवरण पे नहीं, किसी स्केल पे नहीं, सफलता आपके स्व से शुरू होकर आपके स्व पे ही समाप्त होगी। जब आप क्रिएटिव हो जाते हैं, फिर क्या आता है आपके समक्ष? ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर? when you absolutely think about the optimism, like you are not a parasite, alright, आप नकारात्मकता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सकारात्मक वातावरण में घुसते चले जा रहे हैं। ये सकारात्मकता आपको ऐसी अवस्था में ले जाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पनाशील भी नहीं हो सकती। सकारात्मकता। भाई योग के अध्यापकों, बच्चों या टीचर्स में या इनमें सकारात्मकता की क्या आवश्यकता है? भाई वो तो ऑलरेडी सकारात्मकता है, सकारात्मक है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रकाश का ना होना अंधकार है। प्रकाश यदि नहीं है तो ही अंधकार है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अंधकार का ना होना प्रकाश है। नहीं भाई साहब, अंधकार ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार तो अटल है। उसके लिए तो आपको एक सूरज सेट करना पड़ेगा, और वो सूरज ही आपकी सकारात्मकता का कारक है। बनिए ना, सूरज ढूंढिए ना अपने अंदर, कहाँ है, कौन से चक्र में सूरज है आपका, ढूंढ के निकालिए। ऑप्टिमिज्म, सकारात्मकता, एक ऐसा पहलू जिस पहलू पे आप अपने आप को एक गजब की अवस्था में प्राप्त करेंगे। सकारात्मकता वो पहलू है। यदि इसके बाद के पैटर्न्स पे बात करें तो फिर आती है बात सेल्फ कंपेशन की, और फिर आती है आपके एक्सेप्टेंस की, एडिक्शन की। देखिए, एक्सेप्टेंस और एडिक्शन ये दो समानांतर शब्द हैं। एक्सेप्टेंस और एडिक्शन क्या हो सकता है? यदि हम नॉर्मली बात करें तो एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। लाइक आपके सामने यदि कोई चैलेंज आया तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीख गए। जिस भी क्षण आपने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया चीज़ों को, आप उसके अगेंस्ट एक्ट करने लग गए, फिर आप नहीं रह जाएंगे। आपका मूल आपसे बहुत दूर हो जाएगा, और जिसका भी मूल दूर हुआ वो व्यक्ति फिर बचता नहीं। उदाहरण के तौर पे आप गाजर या आलू को देख लीजिए। भाई मूल होते हैं, निकाल के उनको दूर कर दिया, फिर क्या उनकी सब्जी बनती है? समाप्त। कहने का तात्पर्य है कि आपको एक्सेप्टेंस की थियरी भी जाननी होगी। एक्सेप्टेंस की थियरी एक ऐसी थियरी है जिस थियरी में आप अपने आप को हमेशा एक डिविलियर्ड कंडीशन में प्राप्त करते हैं, एक ऐसी अवस्था में प्राप्त करते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को समझते तो हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन आप कर ही नहीं पाते। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
योगा आपको इसी एक्सेप्टेंस की थियरी से रूबरू कराता है, आपको इतना योग्य बना देता है कि आप उन चीज़ों को बड़े आराम से प्राप्त कर पाएंगे। थियरी ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर आती है बात एडिक्शन की। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई लत लगी पड़ी है, हम एडिक्टेड हैं। सकारात्मक एडिक्शन भी हो सकती है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, उनको उनका उनका एडिक्शन है। कुछ बच्चे हैं जिनको नॉवेल बहुत बढ़िया लगती है। कुछ बच्चे हैं जिनको आर्यमान शक्तिमान बड़ा अच्छा लगता था 90s के किड को। एडिक्शन है। आप एडिक्ट होइए, लेकिन यौगिक पर्सपेक्टिव के। किस चीज़ के एडिक्शन को आपको प्राप्त करना है? सत्य के, अहिंसा के, आस्तेय के, ब्रह्मचर्य के, अपरिग्रह के, शौच के, स्वाध्याय के, तप के, ईश्वर प्राणिधान के। इतने सारे तो हैं आपके ऑप्शन। जो पहले यम और नियम है ना, दोनों अष्टांगा में, वो आपको एडिक्ट करने के लिए ही बताए गए। भाई आप एडिक्ट हो जाइए एक बार सच बोलने के, फिर देखिए क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो दुनिया आपके खिलाफ या तो दुनिया आपके साथ। और जो आपके खिलाफ आज है वो यकीन रखिए आज नहीं तो कल आपके साथ आएगा, क्योंकि सत्य को कोई हरा नहीं सकता। ये खासियत है। सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तमाम चीज़ें हैं मित्रों जिसके प्रति आप एडिक्ट हो सकते हैं। आप योग अध्यापक हैं, प्राप्त कीजिए ना, आपके पास तो ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने टोटल फैक्सिनेटिंग वर्ड्स में, जैसे एडिक्शन, एक्सेप्टेंस, गोल, जेनरसिटी, सेल्फ कंपेशन, फ्लो, ऑप्टिमिज्म, ह्यूमिलिटी, क्रिएटिविटी, उसके बाद फिर नेचर, इन्वायरमेंट, फिर ग्रेटिट्यूड हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, डिप्रेशन हो गया, कॉपिंग हो गई, माइंडफुलनेस हो गया, हेल्थ हो गया, है ना। ये चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाएंगी। और आपको यदि वास्तव में ये लेवल प्राप्त करना है तो आपको योग में जुड़ना होगा। ये जीवन के वो, अगर आपको लगता है कि मैं फिर से इन सारे शब्दों को दोहरा दूं, तो आप लिख सकते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल 27 चीज़ें हैं। पहली चीज़ गिनिएगा, एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़ एडिक्शन। तीसरी चीज़ क्रिएटिविटी। चौथी चीज़ डिप्रेशन। पांचवी चीज़ एक्सरसाइज, आसना। छठी चीज़ रिकवरी। सातवीं चीज़ फ्लो। आठवीं चीज़ जेनरसिटी। नौवीं चीज़ ग्रेटिट्यूड। 10वीं चीज़ हैप्पीनेस। 11वीं चीज़ डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ। 12वीं चीज़ ह्यूमिलिटी। 13वीं चीज़ मेडिटेशन, होता ना। 14वीं चीज़ माइंडफुलनेस, आपके दिमाग की अवस्था। 15वीं चीज़ 16वीं चीज़ गोल सेटिंग। 17वीं चीज़ नेचर एंड एनवायरनमेंट। 18वीं चीज़ रेसिलियंस। 19वीं चीज़ सेल्फ कंट्रोल। 20वीं चीज़ लाफ्टर, स्माइलिंग एंड लाफ्टर। देखिए 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि आसन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लाफ्टर आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रसन्न रहना, हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद 25वीं चीज़ म्यूज़िक, माने आपका संगीत। 26वीं चीज़ ऑप्टिमिज्म। और 27वीं चीज़ वैल्यूज़। यही है पैटर्न। इन्हीं पैटर्न के तौर पे हमें प्राप्त करना है चीज़ें। भाई आपके पास ऑप्टिमिज्म है, आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, आपके पास रेजिलियंस है, आपके पास म्यूजिक है, आपके पास माइंडफुलनेस है, आपके पास एक्सरसाइज है, आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके पास एथिक्स है, आपके पास गोल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो 27 चीज़ें मैंने आपको गिनाई ना, ये आपके जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगी। और ये शून्य से शिखर को प्राप्त करने की कवायद में ही दुनिया भाग रही है। कीजिए ना, आप तो योग के व्यक्ति हैं, योग के ही योग्य व्यक्ति हैं आप, तभी तो आप एक्सरसाइज्ड हैं, अभी आप चल पा रहे हैं। नहीं तो तमाम लोगों ने योग सीखा और सीख के रह गए घर। भाई आपके क्लाइंटों ने योग आपसे सीखा और सीख के रह गए घर पे, आज वही डिप्रेशन में। लेकिन आप तो अध्यापक हैं, आप तो छात्र हैं। आप यदि नॉर्मल जीवन भी जी रहे हैं ना, तो आपको ये महसूस करना होगा कि जीवन के पूरे प्रकरण में चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है। यदि आपके मस्तिष्क में कभी भी किसी भी विषय वस्तु को लेके डाउटफुलनेस आए, द्वैधी भाव आए, भाई चित्त है आपका, तो चित्त में वृत्ति भी होंगी, और वृत्ति है तो वो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होंगी, महर्षि पतंजलि ने कहा। तो यदि चित्त में वृत्ति है और वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों है, तो अब आपको तो क्लिष्ट में भी अगर देख लें तो आपके पास 5-5, 6-6 चीज़ें हैं। भाई प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। अब प्रमाण को देख लीजिए तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि,
विपर्य की बात करें तो विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। कैसे इन चीज़ों को इतना सेग्रीगेट कैसे किया भाई? जब हम अष्टांगा की बात करते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, फिर यम में भी अहिंसा सत्य आस्ते, फिर अहिंसा में भी मनसा वाचा कर्मणा, फिर मनसा में भी दो आदि दैविक आदि भौतिक, फिर आदि दैविक को भी हम बांटते हैं 3 हिस्सों में। कैसे? आप एक बार जान लीजिए कि शून्य जो चीज़, सपोज कि फिजिक्स की बात करें तो जो नॉर्मल फिजिक्स है जैसे कार्य बल वेक्टर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल फिजिक्स है। उसके बाद जो अगर हम आते हैं तो क्वांटम फिजिक्स आती है। क्वांटम फिजिक्स में लाइट हो गई, आपके पास में ऊष्मा यानी एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आप और छोटे आते हैं तो आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में होती हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है एटम के स्तर पे, क्या होता है। जब आप उससे भी और छोटे स्तर पे आते हैं तो आप पाते हैं परमाणु, जो कि बहुत सूक्ष्म है। परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं। क्या है ये? अब आपसे यदि पूछा जाए कि बड़ी वाली चीज़ खतरा है या छोटी वाली चीज़, तो आपका उत्तर होगा भैया परमाणु बम से तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। उसी परमाणु की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप बहुत सूक्ष्म हुए, बहुत छोटे हुए, तो यकीन रखें आप जीवन के उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो आपके अंतरंग में ही एक बहुत बड़ी विधा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परमाणु बनने की कोशिश कीजिए, क्वांटम फिजिक्स बनने की कोशिश करेंगे तो भी आप परमाणु से छोटे रह जाएंगे। जितने ही आप सूक्ष्मता में जाएंगे किसी भी चीज़ के, जितना ही आप वैल्यू और आप इथिक्स को इनरोल करेंगे, चीज़ों को आप अपने कंपेशन को इनरोल करेंगे, आप अपने ग्रैटिट्यूड को इनरोल करेंगे, आप अपने सेल्फ माइंडफुलनेस को इनरोल करेंगे, फिर आपका लेवल ही अलग होगा मित्रों। प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि जिस भी दिन आप ये प्राप्त कर लेंगे, यकीन रखें जीवन के उन तमाम स्तरों को प्राप्त करेंगे जो अपने आप में बहुत गजब चलने वाला, बहुत बहुत गजब चलने वाला। आज योग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया अपने विश्व योग फेस्टिवल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया। हालांकि मैं आप सभी व्यक्तियों का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन इसके अन्यत्र भी मैंने एक जो चीज़ प्राप्त की है वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि जीवन में आप अपने नए स्तर को प्राप्त करें, और उस स्तर के प्राप्ति के लिए न केवल योग स्पोर्ट्स फेडरेशन अपितु विश्व की सारी संस्थाएं अनवरत गति से कार्य कर रही हैं। मैं अगेन एक बार फिर से प्रोफेसर डॉक्टर अजय अख्तरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने उन तमाम बच्चों को जो मेरे बहुत लाडले हैं, पूरे भारत से जो जुड़े हुए हैं या जो देखेंगे इन वीडियोस को, उनके लिए ही मेरा ये विशेष विशेष उद्बोधन था। मित्र, मुझे पता है कि जब आपकी भी एक अवस्था है और आप इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप करने पे आएंगे तो कर तो कुछ भी लेंगे साहब। ठीक है, वो छोटा सा कच्छप ही था जिसने अपने पीठ पे पूरे पहाड़ को लेके समुद्र मंथन को एक्टिव करा दिया। वो छोटी सी गिलहरी ही थी जो राम के पुल निर्माण के दौरान छोटे छोटे पत्थरों को ले आके रखती थी और तर गई। बहुत उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप मेरे इन 27 मूलभूत तत्वों को ज़रूर रखिएगा। आगे भविष्य में भी आपसे बात होती रहेगी। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पूरे 28-29 राज्यों के जितने भी अधिकारीगण हैं उन सभी तक अपने 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 ज्ञातित्व को पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। उन सभी को बहुत बहुत आभार साधुवाद व्यक्त करता हूं, और उन सभी व्यक्तियों को जो आज हमसे जुड़े या भविष्य में इस वीडियो को देख के जुड़ेंगे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत आभार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।